So welcome back. This is lecture 3 of Introduction to Cost Accounting, and this is for CMA Intermediate, December 2022 attempt. Right. We had finished 2 lectures earlier, right? And today I think we will be able to conclude this chapter. Okay. So we are done till here, which was cost control and cost reduction, right? So now next is classification of cost. Okay, classification means how do you divide cost, right? So what are the types of costs rather? Okay, so that is called as classifying. Okay, for example, if there is a person, okay, a man. You want to classify a man, you can say he's a rich man, he's a poor man, he's a middle class man. Okay, okay, so these are all classification based on source of income. Classification on man based on source of income. Another classification what you can do, okay, classification based on height. Okay, tall man, short man, right, like that. So similarly you can do it on the basis of color. There can be many ways, right? This is how we're going to classify cost on different basis. Okay, so classification is the arrangement of items of cost in logical groups, right? Like we just saw classification of human beings, like that. Classification of costs in some logical groups, okay, based on either the nature of the cost or your purpose of classification. Okay, so as per CAS 1, Cost Accounting Standard 1, basis for cost classification is, okay, so which are the basis by which you can calculate, like here we did based on source of income, based on height, okay, based on color, okay, based on choice, all that you can. Similarly we are classifying cost on various bases. Okay, so based on nature of expense. Okay, one is nature of expense. We'll be studying all of these in details. I'm just taking you through quickly, and then one by one we'll pick up and see the explanation in detail. Okay, nature of expense, relation to object, that is traceability. Okay, this is next one. Then function or activities, right? Then behavior of cost. You would have seen the word behavioral analysis of cost in marginal costing, correct? Okay, so this is behavioral analysis of cost, which is fixed, semi-variable and variable, right? Then you have got based on management decision making. You're classifying based on management requirement. Then production or process. Based on this, we will classify. Then time period. Okay, so these are the things, like you remember in time period, your fixed cost is also called as period cost, isn't it? So all these things we are going to study in detail now. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट को क्लासीफाई किए हमने, राइट? क्लासिफिकेशन यानी हम लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को बांट रहे हैं कि कॉस्ट को कैसे कैसे हम डिवाइड करके देख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था, जैसे आप ह्यूमन बींग्स का भी आप लिस्ट बना सकते हैं ऑन वेरियस बेसिस. डॉग्स का आप लिस्ट बना सकते हैं बेस्ड ऑन लॉयल्टी, कौन कौन सा ब्रीड टॉप 4 है, या बेस्ड ऑन साइज, कौन से टॉप 4 साइज है, टॉप 4 स्मॉलेस्ट है, करेक्ट? ठीक है ना? तो आप बेसिकली इस तरह से कोई बेस, कोई क्वालिटी चूज करके आप एनालाइज करते हो, राइट? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, राइट? सो ये क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. सबसे फर्स्ट इज हियर वी सॉ इज नेचर ऑफ एक्सपेंस. ओके, क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, बट 3 कैटेगरीज, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. ठीक है, ये तो फेमस आप लोगों को मालूम ही है, एवरीवन, ऑल कॉमर्स स्टूडेंट नोज दिस. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बाय नेचर एंड दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. Okay, so material is any material used for to make a product or deliver a service. कोई जो material, raw material आप use कर रहे हैं,
वो है ये मटेरियल. ओके, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, फ्रेट इनवर्ट्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का पॉइंट. ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, फ्रेट इनवर्ट्स, दैट इज आप मैंने ये फ्रेट इनवर्ट्स मींस कैरेज इनवर्ट्स. ठीक है, देन टैक्सेस एंड ड्यूटीज. आपको मटेरियल खरीदने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस भरना पड़ता है, करेक्ट. So and then insurance. Okay, many times you have some insurance on transport or even on the material. Okay, all these costs you have to add up, and that will be your total material cost. Okay, so insurance cost etc. directly attributable to acquisition. ठीक है, तो ये सारी चीजें मेन है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं. व्हाट वी सॉ इज व्हाट इज देयर इन मटेरियल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. Okay, but what you have to add, many times you will use transport to bring the material in. So add the transport cost. Okay, so there will be some carriage which would be carrying your material, that you have to pay. And while buying, you have to pay some indirect taxes, correct? So indirect taxes also will form part of material cost. Any insurance you have taken either on travel, on transport, or on the material, that also you will have to add. Okay, insurance, all those things. So all those things which while buying material you have to pay them. ठीक है, which is incidental to buying material. So जो भी cost है जिसको हम बोलेंगे जो incidental है, यानी आप जब मटेरियल ले रहे हैं उसके साथ साथ वो खर्चा आपका हो गई. ठीक है, वो सब चीजें आपके मटेरियल कॉस्ट में आप ऐड कर लेंगे. ठीक है, लेकिन ठीक है, बट you have to exclude certain things. Okay, you have to exclude. These are all what you would include. So ये last line में जो हम देख रहे हैं ना, so these are all exclusions. Okay, but excluding, okay, trade discounts. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट्स पे मैं आता हूँ. एंड देन इट इज ड्यूटी ड्रॉबैक एंड जीएसटी रिफंड्स. ठीक है, सो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है आपको व्हेनेवर यू डू एन इंपोर्ट. ठीक है, आप आपका बिजनेस है, आप मटेरियल पहले बाहर से यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं. आफ्टर इंपोर्टिंग यू आर डूइंग सम प्रोसेस. यू हैव इंपोर्टेड एंड देन जस्ट प्रोसेसिंग इट अ बिट एंड देन यू आर एक्सपोर्टिंग इट. ये आपका बिजनेस है, राइट. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, व्हाटएवर व्हाइल इंपोर्टिंग यू पे इंपोर्ट ड्यूटी, करेक्ट. तो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे किए होंगे व्हाइल इंपोर्टिंग, ओके, सो वो आपको वो जो है आपको यहाँ वापस मिल जाएगा जब आप एक्सपोर्ट करते हो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हमने देखा कि ये आपने यहाँ पे सपोज 100 रुपीज आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है, बट इफ यू आर एक्सपोर्टिंग द सेम थिंग, तो आप एक्सपोर्ट करते हो, यू गेट अ ड्रॉबैक. ड्रॉबैक मतलब आपको वापस मिल जाते हैं पैसे, ड्यूटी यू विल गेट इट बैक. ठीक है, सो बिकॉज सो ये जो है ऐसी जो चीजें हैं, नॉर्मली एक चीज याद रखना आपको कि जो जैसे हम पहले पहले जो हम जो टी शेप्ड अकाउंट्स जो देखते थे, राइट, इवन नाउ वी फॉलो इट, राइट, बट नॉट फॉर कंपनीज, राइट. कंपनीज में नाउ इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट, राइट. सो इन दिस यू हैव से ट्रेडिंग अकाउंट, देन यू हैड P&L अकाउंट, करेक्ट. दो चीजें हमारे पास हुआ करती थी, एक ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट होता था और नीचे और फिर P&L अकाउंट. ओके, तो सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, यानी अप टू फैक्ट्री का जो जो भी एक्सपेंस, ऑल डायरेक्ट नेचर का जो एक्सपेंस है, दैट यूज्ड टू गो इन ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, और बहुत सारी चीजें, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जो क्या मेंटेन करना पड़ता है, विच यू आर गेटिंग रेगुलरली, दैट इज ऑल नॉर्मल कॉस्ट्स गो इनटू ट्रेडिंग. अब नॉर्मल कॉस्ट नहीं जाता है ट्रेडिंग, अब नॉर्मल कॉस्ट कभी भी P&L में जाता है. ठीक है, हियर अब नॉर्मल. वाई? क्योंकि बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट को हम कंपैरेबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं. ओके, इफ देयर वाज एनीथिंग अब नॉर्मल, ओके, देन द कंपैरिजन विल गो रॉन्ग, राइट. इसमें आपका जो सेल्स का जो वैल्यू है, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ योर सेल्स, ओके, दैट कंपैरिजन फैक्टर, अगर यहाँ पे सपोज यू हैड your normal cost is 100, okay, but there was an abnormal cost of 50, abnormal, so it is now showing as 50. So aapka ratio will change, correct, but you want to really see that
what is the percentage normally if you would have done everything correctly, तो क्या परसेंटेज होगा, करेक्ट? तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी यू एंटर ऑल नॉर्मल कॉस्ट, और इसमें कुछ अब नॉर्मल हुआ तो नीचे काटना तो पड़ेगा ही, राइट? कॉस्ट तो आपका है ही. सी इफ योर प्रॉफिट इज 200, ओके, बट ड्यू टू सम एक्सेप्शनल कॉस्ट यू हैव, आपका योर प्रॉफिट इज 200 और कुछ एक्सेप्शनल कॉस्ट है, ओके, कॉस्ट ऑफ 150, जो नॉर्मली नहीं होता, लेकिन आपके जेब में तो 50 रुपए ही आएंगे, करेक्ट? तो आपको कहीं ना कहीं ये काटना तो पड़ेगा ही, ओके, बट यू डोंट कट इट एट द ट्रेडिंग अकाउंट स्टेज, ऑलवेज कट इट एट द P&L स्टेज, ठीक है? इट इज फॉर टू मेंटेन कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? इसीलिए ये किया जाता है. सो इसीलिए जो है आपका जो ड्यूटी ड्रॉबैक एंड GST रिफंड्स, ठीक है, ये दो चीजें जो है P&L में शो की जाती है, ओके. इट इज नॉट शोन एज ट्रेडिंग, शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट. मटेरियल इज ऑलवेज पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? तो इसीलिए यू हैव टू एक्सक्लूड ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड GST रिफंड्स. अच्छा, अब आ गया लास्ट वन थिंग विच इज ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना चाहिए या नहीं from material cost, okay? Now normally you know that in sales, whatever value of sales you show here, ठीक है, so you exclude trading account, इसके पहले trading account को, okay, exclude trading trade discount, ठीक है, एक्सक्लूड करके एक्सक्लूडेड पार्टी आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर सेल्स, ठीक है? लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं, हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ओके, वी आर परचेजिंग मटेरियल एंड फॉर परचेजिंग मटेरियल वी हैव गॉट सम ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? सो अब ट्रेड डिस्काउंट ऐसा है कि इफ इट इज रेगुलर, रेगुलर अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इट्स अ रेगुलर थिंग इन द मार्केट, ठीक है, देन आप उसको कट करके यहाँ लेके आ सकते हो, ओके. बट आपको इफ यू आर गेटिंग एनी इरेगुलर अमाउंट, दैट इज से because because your vendor has too much of stock or there is less demand or some for some reason is just for this season is giving an extra discount, ठीक है? तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो यहाँ आना चाहिए, इट विल कम टू P&L, ओके. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस, इसीलिए एक्सक्लूडिंग बोला गया है, राइट? सो हियर व्हाट, so far what we have seen is, हमने यहाँ से चालू किया था, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. सो वी आर क्लासिफाइंग कॉस्ट इनटू 7 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन कैसे होता है. फॉर एग्जांपल, you have to classify a man, you can classify on the basis of source of income as a rich man, poor man, middle class man, based on height, as tall, short, correct? So आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उस क्वालिटी को लेके यू क्लासिफाई इट, राइट? वैसा होता है हमारा, राइट? तो ठीक है ना, जैसे मैंने जैसे डॉग्स का भी बताया था, इन डॉग्स द लार्जेस्ट डॉग्स दैट यू कैन क्लासिफाई, स्मॉलेस्ट डॉग्स, ओके, मोस्ट लॉयल डॉग्स, ठीक है, होमली डॉग्स, गार्ड डॉग्स, ऐसे देयर आर डिफरेंट थिंग्स. इस तरह से हम कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, ओके. सो कॉस्ट वही है, वही कॉस्ट को हम अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं यहाँ पे, ओके. So this all these things we are seeing here. First is nature of expense, which we are seeing it here now. So nature of expense में material, labor expenses, like all of us know this, ठीक है? So वही मैंने अभी आपको first I explained you material. Now going to labor. So labor cost में always salaries and wages paid that you have to consider. It can be permanent, temporary or contract employees, ठीक है? आपने तो wages दिए हैं ना उनको, ये नहीं देखना है कि are they your permanent employees, okay? Don't see whether they are a permanent employees or not, okay? Permanent, temporary, whatever contract, you are paying money, right? If you are paying money, it should go to your accounts. So in labor cost, any kind of salary or wage you are paying must go, ठीक है? और उनको जो भी ये जो लोग भी जॉब करते हैं उन लोग ये वर्ड सुने होंगे, CTC, कॉस्ट टू कंपनी, ओके. So this basically tells you what is the cost to company. तो आप अगर कॉस्ट टू कंपनी में अगर आप ये देखोगे कि आपको कितना डायरेक्टली मिल रहा है या हाथ में आ रहा है, ओके, कॉस्ट टू कंपनी माइट बी 10 lakhs, ओके, बट आपके हाथ में भी आता है 8 lakhs. बाकी जो 2 लाख है वो कुछ
परक्विजिट्स देने में, या ओके जनरल थिंग्स विच दे आर गिविंग टू एम्प्लॉयज, ऑल दैट उसमें चले जाता होगा, राइट? या ग्रेचुइटी कटिंग हो जाती होगी, पीएफ कटिंग, ऑल दैट, राइट? सो दिस इज बेसिकली योर कॉस्ट टू कंपनी। सो ये जो कंपनी तो 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं ना, तो कंपनी जब अपना पीएनएल बनाएगा तो ये 8 लाख दिखाएगा कि 10 लाख दिखाएगा? दे विल शो दिस 10 lakhs, isn't it? क्योंकि उनके जेब से तो 10 लाख गया, राइट? सो ये 10 लाख कैसे बनते हैं? व्हेन यू ऐड benefits like provident fund, gratuity, ESI, whatever, other things, okay, which the employee might not get immediately in his hand, ठीक है? So in labor cost you have to, तो क्या देखे हमने labor cost में? Take all kind of salaries and wages. Number two, include other elements of CTC, that is provident fund, gratuity, all those things, okay, that you have to include. Third is expenses. So expenses wo rahenge anything, all expense which is neither material nor labor, ठीक है, that will be termed as expenses, ठीक है? ये expenses के नाम से हम इसको बताएंगे, ओके, राइट? So this is our first classification, most basic, material, labors and expenses, ठीक है? classification by nature of expense. So अभी अगला देखेंगे क्लासिफिकेशन बाय रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, ठीक है? सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, ठीक है? कॉस्ट सेंटर इज समथिंग वेयर यू आर अक्यूमुलेटिंग कॉस्ट्स, ठीक है? So if they say there is two manufacturing operations, one is manufacturing dolls, okay, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, ओके, टॉय गन्स, ठीक है? ये दो प्रोडक्ट हैं आपके, राइट? सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग डॉल्स, ठीक है, यू हैव से यूनिट, आप जो जो कॉस्ट को अक्यूमुलेट कर रहे हो इन सम लॉजिकल ग्रुप्स, यू विल अक्यूमुलेट द कॉस्ट, करेक्ट? सो सो आप क्या करोगे? सो यू विल लेट अस से यू हैव गॉट 4 कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है? एक कॉस्ट सेंटर में ऑल एम्प्लॉय रिलेटेड, लेबर रिलेटेड थिंग्स यू आर पुटिंग इट टुगेदर सो दैट इट इज इजियर, ओके? एक इसमें यू आर पुटिंग ऑल परचेज वट एवर रॉ मटेरियल्स और यू नो एनीथिंग विच यू आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम वन आउटसाइड वेंडर, दैट यू पुट इन वन कॉस्ट सेंटर। ऐसा आप ग्रुप करते हो तो क्या होता है, कभी किसी में कुछ प्रॉब्लम भी होगा, ओके, तो आप ये भी देखिए, अभी 4 कॉस्ट सेंटर्स है आपके, 4 की जगह आप एक भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सारा कॉस्ट एक में डाल देंगे, ठीक है? बट ऐसा करने से क्या होता है, व्हेन देयर इज एनी प्रॉब्लम एंड यू हैव टू गो बैक एंड चेक वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, तब आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा, ओके? व्हेन यू हैव डिवाइडेड इट प्रॉपरली एंड यू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम in a particular month from whatever delivery was made by your supplier or something, so you know which cost center to see, ठीक है? तो ये भी है, और देन यू कैन हैव स्पेशलिस्ट टू मैनेज दोस कॉस्ट सेंटर्स, वो भी है, राइट? सो ये होता है कॉस्ट सेंटर, यानी जो टोटल आपके कॉस्ट है, यू आर जस्ट डिवाइडिंग इनटू कन्वीनियंट यूनिट्स, ठीक है? दीज आर योर कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है? ये एक के लिए हो गया, then this is one cost center, इसके लिए there will be separate cost centers, but when you have got 2 sister products, ठीक है, there can be certain kind of things which are common for them, then you can have a common cost center also, ठीक है, वो भी हो सकता है। अच्छा, ये हो गया कॉस्ट सेंटर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट कॉस्ट सेंटर इज, इसको भी हम आगे देखेंगे, ये हैव टॉपिक ऑफ कॉस्ट सेंटर, ठीक है? मैं बस यहाँ ये समझाना चाहता हूँ, दिस इज कॉस्ट सेंटर एंड वन इज कॉस्ट यूनिट, ठीक है? तो कॉस्ट यूनिट क्या, कॉस्ट सेंटर इज द लॉजिकल यूनिट ऑफ कॉस्ट कलेक्शन, इसको क्या बोलेंगे आप? लॉजिकल यूनिट ऑफ कॉस्ट कलेक्शन, ठीक है? ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है? कॉस्ट सेंटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं और ये सिर्फ कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, ओके? इट्स नॉट, दीज आर नॉट रेवेन्यू सेंटर्स, ओके? तो ये हो गया कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट जो है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब कोई भी चीज बनाती है, ओके, सो व्हेन इट मेक्स इट, व्हेन इट मैन्युफैक्चर्स, ठीक है, उनका अपना एक यूनिट होता है,
कि वो लोग उस यूनिट के टर्म्स में बात करते हैं। जैसे आपके कपड़ों का आप देखेंगे वो लोग थान बोलते हैं, इट इज दैट दे हैव गॉट बिग बिग क्लॉथ्स एंड दे उसको लपेट के रखते हैं, राइट। देन व्हेन यू गो एंड बाय दोस क्लॉथ्स दे टेक इट आउट, अनरैप इट, ठीक है। तो रैप करके फैक्ट्री से आता है वैसे, ओके। दे गेट इट लाइक दैट। सो ईच बिजनेस हैज इट्स ओन यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, ब्रिक्स आर ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 ब्रिक्स। तो हर ऐसे ऐसे 1000 ब्रिक्स में ही उसका कॉस्ट बताया जाता है। मिनिमम जो है, कोई भी फैक्ट्री विल नॉट इसके नीचे नहीं लिखेगी, पर ब्रिक कॉस्ट नहीं बोलेगी, उसमें डील भी नहीं करते, ओके। व्हेन दे सेल इट टू पीपल दे विल से हाउ मेनी 1000 ब्रिक्स यू वांट, ऐसे 1000 में कितने 1000 चाहिए आपको, ओके। दिस इज व्हाट दिस इज। तो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में दे डील इन 1000, करेक्ट। ये इनका कॉस्ट यूनिट हो गया, ओके। तो कॉस्ट यूनिट इज नॉट ऑलवेज पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट तो यहाँ पे 1 ब्रिक है, राइट। तो दिस इज कैसे डिटरमाइन होता है, ये कस्टम से डिटरमाइन होता है, ठीक है। हर बिजनेस का अपना कस्टम होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट कस्टम दे हैव अ कॉस्ट यूनिट। कस्टम यानी इट्स नॉट दैट इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला कस्टम नहीं, यानी रीत जो बोलते हैं, ओके। बेस्ड ऑन दैट यू हैव कॉस्ट यूनिट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो सबसे जब आप when you subdivide costs, ठीक है, the largest subdivision is said to be cost center, ठीक है। cost center में for one particular cost all those kind of costs will be collected in one cost center, ठीक। उसका lowest है cost unit, ठीक है। lowest क्यों, क्योंकि इससे नीचे आपका cost collect नहीं करती है कंपनी, ओके। इट इज ओनली टिल हियर। तो ये हो गया आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन इन रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, ठीक है। सो इट कैन बी allocated, if expenditure can be allocated to cost center or cost object, ठीक है। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी किस मकसद के लिए आप कॉस्ट स्पेंड कर रहे हो। सो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट ओनली यू डिसाइड ऑन कॉस्ट सेंटर्स, ओके। so cost center or cost object in an economically feasible way, ठीक है। then it is called as direct, otherwise it is indirect। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं यार, we're not really talking about cost center, यहाँ पे वो हम will see later, ठीक है। यहाँ पे what we are saying is when you are collecting a cost, ठीक है, you can directly allocate it to a cost center in an economically feasible way। यानी एक cost center में सारा cost आप डाल पा रहे हो, ठीक है। सो दैट विल बी टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, अदरवाइज इट विल बी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, यू विल ऑलवेज अलोकेट इट, आप जमा तो कर लोगे एक कॉस्ट सेंटर में, देन व्हेन यू हैव गॉट 5 प्रोडक्ट्स ऑन सम बेसिस यू हैव टू अलोकेट दैट कॉस्ट टू 5 प्रोडक्ट्स, दैट बिकम्स इनडायरेक्ट, ठीक है, ओके। तो और एक जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में क्या है आपका, डायरेक्ट कॉस्ट इज समथिंग जो आपका प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है। तो जैसे मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। these three are considered to be डायरेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये तीन यहाँ इस स्टेज तक के जो है आप डायरेक्टली यूनिट्स में काम कर रहे हो, either you are buying those units or you are working on units directly. After this stage, office वगैरह, selling and distribution, whatever expenses are there, okay, it will be for many different kind of units, ठीक है। आपको इसको divide करना पड़ेगा, okay, you'll have to divide it on some basis। so इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। so basically ना, और एक बता देता हूँ मैं आपको कि trading and P&L what we saw, so all expenses that come in P&L they are all indirect, whatever comes in trading, in trading whatever comes is till your factory level, ठीक है, ओके। सो ओके, तो मटेरियल, सो अगेन इसके ऊपर जहां हमने क्या बोले, मटेरियल कैन बी, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ओके। सो ठीक है, सो मटेरियल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट मटेरियल
and indirect material labor into direct labor, indirect labor expenses into direct and indirect expenses. तो ये स्टेज में हमने क्या किया, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, ऑल योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका एक और नाम है, आपने सुना होगा, also called as overhead. Okay, you have a chapter, full chapter called overhead. ठीक है, तो after labor will be doing that chapter. Okay, so indirect cost का एक और नाम है overhead. Okay, so overhead में क्या क्या आ जाता है आपका, indirect material, indirect labor, indirect expenses, all indirect expenses together comes as overhead, called as overhead. ठीक है, so ये हो गया आपका ओवरहेड. सो यहाँ पे इस स्टेज में व्हाट वी हैव डन इज, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिए, ठीक है, ये जो आपने पहले स्टेज में हमने मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस बोले थे, राइट, वेट्स एंड मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ओके, ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये है, इसको ये सब definitions will be now same. Okay, cost of material which can be directly allocated to a cost center or cost unit in an economically feasible way. in a economically feasible way का मतलब ये है, ठीक है, कि मैंने अभी मैंने खरीदा है मटेरियल एंड लेबर से पर 1 यूनिट, ठीक है, ऐसे और भी यूनिट्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 यूनिट. मटेरियल मैंने खरीदा है, अब लेबर इसी पे मैंने काम किया है. ओके, ओके, एंड हियर देयर आर सम फैक्ट्री प्रोसेसिंग. ओके, सो लेट मी से फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दैट इज फैक्ट्री में प्रोसेस होगा. ठीक है, सो इकोनॉमिकली फिजिबल वे का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको. ओके, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इकोनॉमिकली फिजिबल वे. 1 rupee मटेरियल यू हैव बॉट, यू नो हाउ मच लेबर यू हैव स्पेंट ऑन दिस 1 यूनिट. ठीक है, सो इकोनॉमिकली यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इन अ फिजिबल वे. वैसे फैक्ट्री एक्सपेंस में फैक्ट्री ने इस यूनिट पे कितना काम किया, हाउ मच और हाउ मेनी आवर्स दे हैव वर्कड, एंड व्हाट इज इफ दे हैव यूज्ड एनी अदर सब्सिडरी मटेरियल और एनीथिंग, वो सब आप इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकली फिजिबल वे. ठीक है, सो देन दैट इज डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट लेबर में भी बस वही है, वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स who can be readily identified or linked with cost center or cost object. ठीक है, so workers can be, जैसे हम ये लेबर हमने बोला यहाँ पे, here this labor we are talking about. Okay, this labor, so this you know that this labor in a day has created 50 pieces. ठीक है, yes, he has manufactured 50 pieces. तो आपको मालूम है जैसे 50 इसको आप एक दिन में आप दे रहे हैं 100 रुपए. ओके, रुपीज 100 यू आर गिविंग, यस, मैन्युफैक्चर्ड 50 पीसेस, सो पर पीस व्हाट इज दिस कॉस्ट, 2, है ना, इस तरह आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं. ओके, बट इफ इट इज इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर क्या करेगा, वो फैक्ट्री में कुछ मशीन क्लीन करेगा. ओके, से ही विल गो टू, वो उसका काम है यूनिट 1 में भी, वर्क इन यूनिट 2 ऑल्सो. यूनिट मतलब ये यूनिट्स नहीं बोल रहा हूँ, ये पीसेस नहीं, जैसे कंपनी के जो सब यूनिट्स होते हैं ना, जो ब्रांचेस टाइप. ओके, दैट, सो ही इज वर्किंग इन यूनिट 1 ऑल्सो, यूनिट 2 ऑल्सो, और इसमें एक यूनिट में अलग अलग जगह जा रहा है, यहाँ भी मशीन क्लीन करता है और कहीं भी क्लीन करता है. ओके, सो आप ये हिसाब लगा सकते हैं क्या पक्का, कि अगर इसका भी अगर सैलरी इज ₹100, ठीक है, तो इसमें ये यूनिट में आपके हैं 50 मशीन है, कौन से मशीन को कितना टाइम दिया एग्जैक्ट सब आप निकाल सकते हैं क्या, यू कैन नॉट, राइट, सो दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट लेबर. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर. ठीक है, चलिए, सो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज ओवर. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बस यही है, एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर which can be linked to a cost center or cost object. ठीक है, ये हो गया आपका. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन. एंड इन दिस, चलो अब ये देखेंगे आप, डायरेक्ट, वी हैव सीन डायरेक्ट
मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तीन चीजें हमने देखी। So add all these three direct things, material, labor, expenses, you will get something called prime cost। ठीक है, कॉस्ट शीट हम देखेंगे आपके कॉस्ट बुक कीपिंग चैप्टर में। जैसे शॉर्ट में बताता हूँ, राइट। वन इज योर, यू स्टार्ट विथ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मटेरियल होता है आपका, ओके। उसमें यू हैव टू टेक ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेजेस ऑफ मटेरियल, ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट मटेरियल कंज्यूम। इसमें नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि इसको विल सी सेपरेटली, ओके। हम जस्ट एक आपको ये बता रहा हूँ, मटेरियल को पहले लेना पड़ता है, देन ऐड लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ये हो गया आपका डायरेक्ट लेबर। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन कॉल एज डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीनों का जब आप ऐड करते हैं ना, इसको इसको जो आता है इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां से इट मूव्स टू फैक्ट्री। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलेंगे, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट इज फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट, इसको ऑल्सो बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सब नाम है। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको आ जाता है। सो आफ्टर प्राइम कॉस्ट यू ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज होता है आपका ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, ऐड ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जस्ट ऐड ऑल दिस। तो ये कॉस्ट शीट हम डिटेल में करेंगे, फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, जो आप इसके साथ लिंक कर सकें, okay, so that you can link here. I'm just telling you in short. So add office cost, you will get cost of production. Okay, right, and then you have to add opening and closing stock of finished goods. Okay, and you get, okay, this add opening stock, okay, and closing stock, difference between the between them। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितना प्रोडक्शन आप करेगा, ओपनिंग स्टॉक लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो लेस क्लोजिंग स्टॉक आप कर देंगे, is to you get cost of goods sold। ठीक है, और इससे पहले, ओके, ये ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन आपको इस पेज में जो है, इस यहाँ पे आपको यू कैन ऐड योर सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये ऐड करेंगे तो हमको मिल जाता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक जनरल ये मैंने आपको बताया, इस तरह से यू हैव टू ऐड अप द कॉस्ट। इसको हम लोग डिटेल में हम देखेंगे आपके कॉस्ट बुक कीपिंग में, ओके। और भी इसके डिटेलिंग्स में जाएंगी, लाइन जो है, कौन से ओपनिंग स्टॉक्स ऐड होते हैं, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक विच इज एडेड। ये तीन स्टेजेस में ऐड होता है बेसिकली, मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ओके, सो चलिए, तो इस तरह से वो क्यों बताया मैंने आपको कि दिस इज द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और देन व्हेन इसमें आप ये जो तीन है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ऐड करोगे तो इट विल बी कॉल्ड एज, ठीक है, इसमें बस तीनों का वही आप बोलेंगे, कैन नॉट बी डायरेक्टली अलोकेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इसमें भी कैन नॉट बी डायरेक्टली अलोकेबल। ठीक है, यहाँ पे भी है अदर एक्सपेंस कैन नॉट बी डायरेक्टली अलोकेबल। ठीक है, वही इसका वो है इनडायरेक्ट। ये तीनों का हम ऐड करेंगे तो यू गेट व्हाट, ओवरहेड।
सो ओवरहेड इज नॉट ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो उसको इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो है जो आप वॉट एवर यू आर परचेजिंग ऑन योर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। वॉट एवर यू आर, आपका जो रेगुलर बिजनेस है, फॉर दैट आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, so that is your direct material. Indirect material is there can be some material used in factory, for example, ठीक है, used in factory, मान लीजिए ग्रीस, ग्रीस यूज कर रहे हैं आप, ओके, ग्रीस, ठीक है। सो अब जो आपने एक जितना ग्रीस लगाए हैं, ठीक है, किसी में आप किसी मशीन में ज्यादा लगाना पड़ता होगा, किसी में कम लगाना पड़ता होगा, राइट, तो आप बोल सकते हैं कि इस यूनिट में इतना ग्रीस ही गया है करके, कॉस्ट जो है, राइट, जैसे मटेरियल में हम बोलते हैं ना, जैसे ये मटेरियल का इतना कॉस्ट है, लाइक दैट यू कैन नॉट से, राइट, ये वाले, इसलिए इनको इनडायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, so ये तीनों को यू एडेड यू विल गेट ओवरहेड्स, ये एक बात हो गया हमारा, ठीक है। अभी थर्ड क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, जिस क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस। अच्छा, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में थियरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको लॉजिक समझ गया तो यू कैन डू वेरी वेल इन थियरी, ठीक है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अप टू 70 तक आप स्कोर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो और इसमें थियरी में एक स्पेशल ध्यान रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, जो जो थियरी में बता रहा हूँ, ओके, थियरी में भी आप लोग को थोड़ा बोर होगा, बट थियरी भी करना है, जरूरी है हमको, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, नाम ही है फंक्शन, ठीक है, यानी बिजनेस के फंक्शंस क्या है, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस, वन इज प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। कॉस्ट शीट में हम ये सब ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं फर्स्ट, गेटिंग फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, देन यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यू गेट टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो ये है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है ऐसे इन कॉस्ट शीट आप सेपरेटली ट्रीट नहीं करते, ओके, इन कॉस्ट शीट जो है यू डोंट ट्रीट इट सेपरेटली। रिसर्च एंड डेवलप एक्सपेंसेस गोज फॉर जिस चीज के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, ओके, विल गो एज अ कॉस्ट फॉर दैट, नॉर्मली इट कम्स विद इन योर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, सो वी हैव शोन ऑल मेजर फंक्शंस, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तो आपको मालूम ही है पहला, ठीक है, ऑल कॉस्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में क्या कॉस्ट हो जाता है आपका, कि व्हाट इज द कॉस्ट एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, मटेरियल, लेबर, दोस कॉस्ट आर कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, जो भी कॉस्ट आपका material cost, then labor worked on it, so that cost got added. So by the time you work on the product in factory, okay, the total cost which it has, also it also has material cost, labor cost, apart from फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, ये दो टर्म्स अलग अलग है, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके, फैक्ट्री कॉस्ट इज द सम टोटल मटेरियल, लेबर प्लस ओवरहेड, ठीक है, ये क्या फैक्ट्री कॉस्ट इज मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये सब सब मिला के जो है फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है आपका, ठीक है, राइट। सो और फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज एक्सपेंसेस ओनली ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, जैसे मटेरियल इज सेपरेट, लेबर इज सेपरेट, देयर आर सम एक्सपेंसेस ओनली ऑफ फैक्ट्री, तो वो हो गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसका एक और वर्ड है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, सो ऑन कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल फिगर है, ये टोटल फिगर है, ओके, तो आप अगर इसको ये समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ओके।
चलिए, सो दिस इज ओवर। यहाँ पे ये 4 फंक्शंस में हम जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो फैक्ट्री कॉस्ट है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ठीक है। ऑल कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल, लेबर, सर्विसेज अंटिल प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक के, फैक्ट्री में जब तक है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, तब तक जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे विल बी प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके, राइट। और यहाँ पे एक बोल रहा है अंटिल एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज पैक्ड विथ प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। सो व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग? प्राइमरी पैकिंग जो है आपका, ठीक है, वो है कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो प्रोडक्ट को आपको कुछ, कई प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा कुछ आपको प्रिलिमिनरी पैकिंग करके आपको निकालना पड़ेगा, ओके। फॉर एग्जांपल अब सिगरेट ले लीजिए, ओके, और देर आर मेनी सच थिंग्स जिसको, ठीक है, अब ये मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकता है वो, उसको पेस्चराइज और समथिंग इट इज डूइंग, ठीक है, वो करके उसको ऐसे ही फेंक सकता है क्या? नहीं, ठीक है, वो चीज ही ऐसी है कि आपको उसको पैकेट में मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही आपको पैक करके निकालना पड़ेगा उसको, करेक्ट, अलॉन्ग विथ मैन्युफैक्चरिंग। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग है कि प्रोडक्शन इज ओवर, प्राइमरी पैकिंग की जो भी जरूरत थी दैट इज ऑल्सो डन, देन वाइल सेलिंग आप उसको अच्छे से पैक करते हैं, राइट, फॉर डिलीवरी जो आप पैक करते हैं, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। प्रोडक्शन और ये हो गया प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। चलिए थोड़ा सा और ये देखते हैं। फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये सारे जो है हमको मालूम ही है, ओके, ये सारे दीज आर ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर, ठीक है, ओके, ये हो गया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यहाँ पे हमने देखे, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में सारे ऑफिस कॉस्ट और जनरल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। सो जो भी आपके डायरेक्टर्स, बड़े लोगों की सैलरी, ऑल दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और ऑफिस लेवल में हुएवर आर ऑफिस एम्प्लॉइज, उनकी सैलरी, ओके, ऑल दैट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये पूरा इनडायरेक्ट होता है ऑलवेज, ओके, क्योंकि जो ऑफिस में जो स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, उसके काम को आप एक यूनिट के साथ कैसे लिंक करोगे, है ना। सो ऑफिस में इफ समवन इज वर्किंग इन द ऑफिस, यू कैन नॉट लिंक इट विद प्रोडक्शन एट ऑल डायरेक्टली, ठीक है। ऑफिस के एम्प्लॉय ने आज 5 मिनट का काम किया, ये 5 मिनट का काम आप क्या एक यूनिट में डाल सकते हैं? नहीं, करेक्ट, देयर इज नो रिलेशन, सो दे आर ऑलवेज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। सो अब इसमें जो है, देखिए, हमने बोले कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है, ठीक है, जो कंपनी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, द होल थिंग कम्स अंडर ऑफिस कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ओके। सो व्हाट अबाउट फैक्ट्री? फैक्ट्री को भी तो कोई मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री का फोरमैन है और फैक्ट्री का आपका मैनेजर है, राइट, हुएवर इज द फैक्ट्री फंक्शनल मैनेजर, फैक्ट्री का जो मेन मैनेजर है, ऑल दैट, ठीक है, वो तो फैक्ट्री का काम कर रहा है, ठीक है, बट ही इज अ मैनेजर। तब सवाल ये है कि उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे कि फैक्ट्री कॉस्ट में डालेंगे? दैट यू विल पुट इन फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, बिकॉज ही इज डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। यहाँ पे सिर्फ यू हैव टू पुट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ओके। तो दैट्स व्हाई इट डजंट इंक्लूड कंट्रोल एक्टिविटीज विद इन प्रोडक्शन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब जो अलग अलग फंक्शन है उसके अंदर का जो मैनेजमेंट कर रहा है, दैट इज नॉट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, दैट विल गो अंडर दैट फंक्शन कॉस्ट, ठीक है, ओके। सो नाउ चलिए नेक्स्ट इज, ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी
directing, organizing, controlling वगैरह. So by this you can see directing, organizing, controlling. It is basically the management function. Okay, that management which is working in managing the general organization, यानी directors and all that. ठीक है, उनका सब will come under administration cost. Okay. So Murli, right now cost accounting is going. So by tomorrow or by tonight, I will send you all timings. Okay. So we'll just, so it is going to be 2 timings basically now. ठीक है, आप लोगों का 2 टाइमिंग अभी होगा आगे से. तो एक one is 7 p.m. This one 7 to 8:30 is the earliest possible that I can give. ठीक है, p.m. I'm trying to adjust all your important subjects in the second one, which is 9:30 to 11. So all your direct tax and some part of law and all, I'm adjusting there. Only cost accounting is going in the 7 p.m. timing. Okay. All your other 2 will be, since this 9:30 to 11, I have got 7 slots for this, correct? 7 दिन के 7 slot इसके हैं and 7 slots for this. So of these 7, I will give 4 for DT. ठीक है, and for law, for the time being, we'll start with 3. ठीक है, फिर देखेंगे. As of now, we'll give 3 slots to law. ठीक है, ये तीनों ये वाले नहीं रहेंगे. One will go on Sunday. एक तो संडे को रहेगा, संडे मॉर्निंग, and 2 will be this evening slot. ठीक है, that's all. The law and your cost will, all 4 slots will be here. Okay, ठीक है ना, इस तरह से करने वाला हूँ. Okay, something like that. So यानी आपका ज्यादा से ज्यादा I will adjust here. So this is comfortable for all of you in general, right? But I have to use this time also. ठीक है, so इस तरह से हम करेंगे. चलिए, okay, right? So Murli, so this is the time, just you can attend. I'll tell you which are group 2 days. ठीक है, so because you are also doing group 1, right, Murli? So I'll tell you accordingly. ठीक है, which days are group 2. Now our OMSM is almost done. ठीक है, OMSM is almost done, and there's one chapter which Shivam sir is going to do. तो बाकी सब हो गया OMSM में. So that is why अभी मुझे only thing I have to adjust now is your CMA of CMA-FM. CMA part of 50 marks में, बस उसके लिए I have to adjust some time. ठीक है, which I'll probably use 2 slots from here, because for CMA I've got second group students as well, other second group students. तो यहाँ पे 2 slot निकालूंगा मैं. Okay, 2 slots here. ठीक है, देखते हैं. ओके, लॉ का 4 DT I'll give in this. Law I will give 2. ठीक है, 2 law I'll give in your time. 1 law I might have to adjust here. ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे. ठीक है Sir, after routine, that would be okay for us to understand it well. It is not clear for understanding routine. which one? So the routine of group 1 or group 2, I'm not quite clear about. Sir, you made the routine, after that I'm able to understand. Oh, okay. So here, I'll tell you after the class. Okay, I'll just repeat this. Okay, sir, that would be better. Okay, fine. ठीक है. So अब now यहाँ पे, okay, so we were doing administration. So I have one question. Yeah. Is there any notes for cost, or Yes. it is only from book? It is, see, this is all notes which I prepare for all your subjects. It is basically your, we take your study material and we abridge it. ठीक है, so you will get all these abridged notes. जैसे आपको
DTK मिल रहे हैं, all those notes, no? You have got full notes for cost also. Okay, sir. So चलिए, so this is now, ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात हमने कर ली है. ओके, एंड वी सेड दैट इट डज नॉट इंक्लूड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर फंक्शंस. ठीक है, लाइक ओके, व्हाट इज दिस क्लोज्ड कैप्शनिंग? ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट इज, so administration cost is only administration cost, only for administration function, that is general administration. ठीक है, अगर मैं R&D डिपार्टमेंट का जो मेन मैनेजर है उसका कॉस्ट लूंगा, if I take the cost of salary of R&D manager, okay, that will come under R&D cost. ठीक है, if R&D is then being clubbed as administration cost later on, then it might be clubbed, but first instance में it will all go under those costs. ठीक है, okay, so ये होगा if administration cost is cost of administration function, आपका policy formulation related and direction related. okay, तो चलिए, ये तो administration cost के टाइप्स क्या क्या हैं, एग्जांपल्स. तो ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, they'll give you some in your objective type question आपको दे दिए जाते हैं, so that you have to identify which type of cost is it. ठीक, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता, it is not. So if you have read this in detail, then you can definitely answer it. Okay, so salaries of office staff, accountants, directors. ठीक है, रेंट रेट्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग. ठीक है, ये भी याद रखना है कि सारा डेप्रिसिएशन इज नीदर ऑफिस कॉस्ट नीदर फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन इज फैक्ट्री कॉस्ट, हियर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड ऑल इज ऑफिस कॉस्ट. ओके, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सब ऑफिस में होते ही है, राइट. ऑफिस सप्लाईज एंड एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब आपके एग्जांपल्स ऑफ office cost. The next is your selling and distribution cost. Here there are two parts. One is selling. ठीक है, एक है selling, दूसरा है distribution. Both are different. Okay. ठीक है, selling and distribution. So ये दोनों अलग अलग है, हम देखते हैं. Okay. These are indirect costs. Of course, factory cost के बाद में जो भी आ रहा है सब indirect. Direct costs they end at factory cost. Okay, so now selling and distribution. Selling costs are indirect costs related to selling of products or services. ठीक है, so sales management, आप जो है प्रोडक्ट को आपको बिकवाना है, when to advertise, what to advertise, how much to spend. Okay, all those activities they are selling cost, where you are doing sales management. ठीक है, that is your selling cost. अब distribution cost क्या है? Distribution cost is only सब जो प्रोडक्ट बिक गया है उसको आपको, मे बी इफ योर कस्टमर्स आर वेयर हाउसेज और एंड कस्टमर, whoever it is, you have to go and drop it there, है ना. आपके डिलीवरी वैन्स होंगे, use your delivery vans and go and drop the products there. ठीक है, that function is distribution function. So distribution has nothing to do with advertisement and management of selling. ठीक है, so selling is the main function, distribution is a secondary function. ठीक है, so ठीक है, selling function is the brain of selling. आपका जो selling and distribution is, yes it is important क्योंकि, but distribution is not, you can say selling से थोड़ा it is less preferred kind of. ठीक है, normally जो है आपका selling के जो heads होते हैं, the head distribution also. ठीक है, unless it is a very big organization. Okay, so ठीक है, until it reaches the final customer, that is distribution. Okay,
So अब ये 2 पॉइंट में हमको ये है कि we have seen क्या है in short. Okay, selling, what does it do? Create and stimulate demand of company's product and secure orders. ठीक है, तो सेलिंग क्या करेगा, देखिए वो प्रोडक्ट बिकवाना है हमको. दे विल सी वेयर टू गिव एड, कैसे कस्टमर को, अगर आपका कोई ये है थ्रू वेबसाइट यू आर सेलिंग, देन हाउ टू इम्प्रूव इट एंड ऑल दैट. ठीक है, ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू सेल्स दे विल हैंडल सेलिंग. ठीक है, क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, दे विल स्टिमुलेट डिमांड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजिंग एंड एवरीथिंग. और एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ करना है वो मालूम होना चाहिए, राइट? नॉट जस्ट दैट यू गिव एडवर्टाइजमेंट एनीवेयर. ठीक है, एंड सिक्योर ऑर्डर्स, ये है मेन. दिस इज द मेन. डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट मेक सेलेबल गुड्स अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर आफ्टर इट हैज बीन सोल्ड. उसको वहां लेके जाके आपको पहुंचाना है. ओके, यू हैव टू सेंड द गुड्स टू द कस्टमर. ओके, mostly for most manufacturing organizations, the customer is not the final individual customer. This is normally your either your wholesaler or some retailer sometimes, okay, or some other bigger malls or things like that. Okay, so they normally deliver to not to single customers but to bigger customers. Okay, so this is your selling and distribution. इसके examples क्या हैं? Salaries and commissions of salesman and sales manager. ठीक है, so if they give salary of sales manager, ठीक है, बहुत सारे लोग salaries word देख के they'll write office expenses. Okay, which is incorrect. Now expenses of advertisement insurance. ठीक है, अब ये इंश्योरेंस में तो जिस चीज का इंश्योरेंस है, whatever is the subject matter of insurance, it will go in that cost. Okay, this insurance is for something related to selling and distribution, then it will be this cost. ठीक है, if it is related to office, it will be office cost. ठीक है, similarly factory. अब यहाँ पे rent rates, depreciation, insurance of sales office and warehouses, cost of insurance, freight, export duty, packing, shipping, etc. ठीक है, so while you are shipping it out, ठीक है, then you have to pay some indirect taxes and all, packing, shipping, all that. ठीक है, ये सब come under selling and distribution. And this is maintenance of delivery vans. ठीक है, these are all selling and distribution costs. ठीक है, जब भी अगर if they ask anything between selling and distribution, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, just see which is the function which is only aimed, उसका डायरेक्शन है, बस जो भी मटेरियल बनाया गया है, ओके, सब पैकिंग वैकिंग करके रेडी रहेगा, एवरीथिंग दैट दे हैव टू जस्ट टेक एंड डिलीवर इट. ठीक है, तो उसके अंदर जो आता है ओनली दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नॉर्मली योर डिलीवरी वैन्स, ठीक है, सैलरी ऑफ डिलीवरी वैन ड्राइवर, ओके, ये सब चीजें जो है इस तरह की चीजें will come under what? Distribution. Okay, चलिए आखिरी हमारा इस पार्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. सो आई थिंक विल नीड वन मोर क्लास फॉर दिस. ओके, तो करेंगे, आई लेट यू नो. ठीक है, टुमारो इज माय लास्ट क्लास फॉर OMSM. So after that my OMSM will go off. So then next is research and development cost. ठीक है, so research क्यों करते हैं? For improving the quality of your products. ठीक है, to improve durability or anything like that. ठीक है, improve quality of present product or improve process of manufacture so that your cost reduces. Develop a new product, market research and commercialization. ठीक है, commercialization thereof है ना, market research तो आपने कर दिया, ये करना है. Next is you have to implement your research, correct? Commercially जो हमने तो we know ना कि क्या क्या relationship है. Now how to implement it commercially. ठीक है, that is commercialization.
ठीक है. So these are research and development or R&D costs. और इसके एग्जांपल्स है डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फाइंडिंग न्यू यूसेज ऑफ नोन प्रोडक्ट्स, सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम अराइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. और देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट कॉस्ट. Development cost includes cost incurred for commercialization or implementation of research findings. ठीक है. So research is the research जिससे आप final you will get the final relationship what you are attempting. Okay. So development is nothing but that is like after you have research findings, now you want to apply this into the market. उसके लिए आपको then you will have to include other field people, right? So once you give your research findings, you have to contact your office. Okay, and because you have all the data regarding it, for implementation stage also you will be around. Okay, चलिए. बट मेन इनका R&D वालों का काम कितना है? रिसर्च करके उसका रिजल्ट निकालना. ओके, उसको आगे कैसे मार्केट में इंप्लीमेंट करना है, दैट ऑफिस विल टेक अ डिसीजन ऑन दैट. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट इज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है. तो कभी भी कई बार क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट अ फैक्ट्री, ओके, सो कुछ कॉस्ट्स इनकर होते हैं. ओके, विच इज ऑफ इट कैन बी ऑफ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर. ठीक है. इवन द रेवेन्यू नेचर कॉस्ट जो है, ठीक है, इवन द रेवेन्यू नेचर कॉस्ट यू डू नॉट हैव प्रोडक्शन टू चार्ज इट टू, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होके यू हैव नॉट स्टार्टेड सेलिंग इट. ठीक है. वो होगा, दैट विल हैपन लेट्स से इन 1 year और 2 years टाइम. ठीक है. तो उस स्टेज में जो भी आपके कॉस्ट्स हो रहे हैं वो सब है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट्स. ओके, व्हेन अ न्यू फैक्ट्री इन प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है. न्यू प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन, न्यू प्रोडक्ट लाइन इज टेकन अप. ठीक है. सो एनीथिंग यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, इसीलिए तो अभी उसका मार्केट नहीं है ना रेडी. एनी न्यू थिंग, इट कैन बी अ न्यू एस्टेब्लिशमेंट और न्यू प्रोजेक्ट और अ न्यू प्रोडक्ट लाइन. ठीक है. बट यू डोंट हैव अ मार्केट फॉर इट. यू विल गेट द मार्केट इन अ ईयर और 2. ठीक है. बट यू आर नाउ डूइंग द प्रोडक्शन एंड ऑल दैट. ओके ओके. और यहाँ पे जो है देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड और फॉर्मल प्रोडक्शन टू विच सच कॉस्ट में बी चार्ज्ड. ठीक है. तो आपको अभी you have to wait to charge this. ठीक है. You cannot tie it up with any revenue at this point of time. Pre-production costs are normally treated as deferred revenue expenditure and charged to the cost of future production. Deferred revenue expenditure मतलब ये कि आपका year, if you have got year 1, okay, year 2 and year 3. ठीक है. So for example, best example of deferred revenue expenditure is यहाँ पे लिखो. ठीक है. बेस्ट एग्जांपल इज हेवी एडवर्टाइजिंग. ठीक है. यहाँ पे जो है ना, यू आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ 50,000. ओके. ठीक है. एक राउंड फिगर में लेता हूँ 60,000. ओके, 60,000 आपने एक्सपेंस किए हैं. इसका बेनिफिट मिलने वाला है ये 3 साल को. सो ओके, तो इसको आप then you have to apportion it to all 3 years. This is called as deferred revenue expenditure. वैसे यही ऐसे काम करता है प्री प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर. तो आपने जो जो प्रोडक्शन के पहले जो जो एक्सपेंडिचर हुए हैं आपके, ठीक है, हर टाइप के एक्सपेंडिचर, एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट रेवेन्यू. ठीक है. तो इवन जो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी उस वक्त का डेप्रिसिएशन जो है आपके पास अभी यही नहीं है ना, आपने बेचे ही नहीं तो आप क्या चार्ज करोगे, राइट? सो ऑल एक्सपेंसेस यू हैव टू अक्यूमुलेट. डेप्रिसिएशन मान लीजिए ये 3 साल, आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट has started selling. ठीक है. ओके, ये तो मैंने एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल दिया आपको. नाउ कमिंग बैक टू अवर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है. सो ये एडवर्टीजमेंट इज नॉट प्री प्रोडक्शन. ठीक है. ये तो मैं जस्ट टू एक्सप्लेन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
नाउ यहाँ पे जो है 3 years यू आर स्पेंडिंग मेनी थिंग्स, ओके, यू हैव मे बी आपने यू माइट स्टार्ट योर प्रोडक्शन इन year 2, पहले साल में तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेट्स सी, है ना, लेट्स से यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ, एंड देन यू हैव स्टार्टेड सेलिंग इट इन year 4, ठीक है। सो वॉट एवर आपको ये एक्सपेंडिचर यहाँ जो भी हो रहा है ना year 1, year 2 और year 3 में, ओके, बीट रेवेन्यू तो जाएगा जाएगा, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग विल गेट एडेड, ठीक है। और आपको जो भी लगता है, जैसे यू फील दैट दिस आर 3 years, नेक्स्ट 5 years में आई कैन चार्ज दिस, नेक्स्ट 5 years में आप क्या करोगे, यू विल टेक द एंटायर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, विल गेट 1/5, और बस यहाँ से नेक्स्ट 5 years में चार्ज कर देंगे उस नेक्स्ट 5 years के whatever will be the expense of that year, along with that just put 1/5 of this, okay, इस तरह से होता है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। if you have any doubt you can stop me, ठीक है। now next is फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज, इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन योर मार्जिनल कॉस्ट क्लास, ठीक है। तो वो वाला लेक्चर जो है आपको, आई विल गिव एक्सेस टू मार्जिनल कॉस्ट लेक्चर, ऑल दीज थिंग्स आर इन डिटेल देयर, ठीक है, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन चैप्टर, राइट। अभी इसकी जरूरत नहीं है, दीज थिंग्स, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, इतना बता देता हूँ। Fixed cost you might be knowing, ठीक है, it is a period cost like rent and all that, ठीक है। इसका पूरा detailed explanation in your marginal, so you can just see that. Variable is the cost of a product, something like that. Semi variable में क्या होता है ना, it is variable में क्या होगा, देखिए variable and semi variable में फर्क है कि in variable yes, Murli, so variable, ठीक है, एंड सेमी वेरिएबल, ठीक है, सेमी वेरिएबल है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ओके। सो नाउ इन वेरिएबल व्हाट विल हैपन, से पर यूनिट कॉस्ट इज 50, ठीक है। सो आई हैव सोल्ड 4 यूनिट्स, इसका क्या कॉस्ट होगा, 50 into 4, ठीक है, दैट इज 200, है ना। इफ आई सेल 10 units, 50 into 10, 500, ठीक है, it is going in direct proportion, okay। but here in semi variable what happens, no, कि आपका there are some not all expenses increase, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, some part which doesn't increase, some part is fixed internally, ठीक है, और some part increases, जैसे for example say for this per unit cost, let me say I have 10 laborers, ठीक है, 10 employees or 10 laborers, okay। so they have one supervisor, ठीक है। so if they are working up to, so my policy is such that if they are working up to 8 hours, ठीक है, so they will get their normal salary. When they work more than that 10 hours, ठीक है, तब भी मैं इनको कुछ नहीं देता, I don't give anything. If they are working more than 8 hours, I give more money to the supervisor, ठीक है, for better but observing them better. तो क्या होगा इसमें, so if say so the cost will increase but it will not increase proportionately, क्योंकि only the supervisor salary is increasing, right, this is remaining constant but this is increasing, इसलिए आपको ये रिलेशन नहीं मिलेगा like this, like 50 into 4 200, 250, 50 into 10 500, ठीक है। you will not get this kind of linear relation, ठीक है। so that will be the difference here, जैसे suppose यहाँ पे if you say your 10 laborers, ठीक है, 10 laborers and one supervisor,
Okay, and say their salary for one is them it is 5,000. Okay, for him it is 10,000. Okay, so if they are doing overtime, in overtime I am giving 20% more to supervisor. ठीक है, तो नॉर्मली ये कितना होगा 10 into 5, this becomes 50,000 and this becomes 10,000. ठीक है, ये रहेगा नॉर्मल सैलरी, दैट यानी हाउ मच इट इज 60,000. ठीक है, बट इफ दे डू ओवर टाइम, ओके, ओवर टाइम, देन हियर दिस विल रिमेन 50,000. ठीक है, here this will remain 50,000 and here this will become 12,000. ठीक है, यहां पे अगर this is cost for let us say if they work 8 hours a day, ठीक है, 8 hours a day मतलब ये 80 hours हो गया इनका. ओके, एंड इसका कितना हो गया 8 hours अगेन. ठीक है, फॉर 88 hours. ठीक है, आई डोंट नो, आप पूरे कैलकुलेशंस को समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ सेमी वेरिएबल वर्क्स. ठीक है, तो 88 पूरे 88 आवर्स का कॉस्ट है 60,000. ठीक है, कितना आपका एक घंटे का कॉस्ट है 681. ठीक है, नाउ इन ओवर टाइम दे आर ऑल वर्किंग 10 hours. ठीक है, so 10 into 10 100 plus 10 110. ठीक है, अब 110 hours वर्क किया है तो आपको कितना हुआ है 62,000. ठीक है, अब नाउ कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दिस, इट इज 563. समझ में आ रहा है? तो इट विल, ये प्रोपोर्शनेटली नहीं जाएगा, और रीजन, उसका रीजन हमेशा ये रहेगा. व्हाट इज द रीजन? within the setup of your semi variable cost, some part will be fixed and some will be variable. इसीलिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता है. यहाँ पे इट इज फुल्ली वेरिएबल. आप एक फॉर 1 unit you will need 50 rupees, 2 units you will need 100 rupees. ठीक है, अंडरस्टूड? So examples of semi variable costs are factory supervision, maintenance, etc. ठीक है, the next is classification on the basis of cost on the basis of management decision making. ठीक है, again you have got marginal cost here. These are costs relevant for management decision making. ठीक है, first is marginal cost. It is aggregate of variable cost, that is prime cost plus variable overhead. ठीक है, marginal cost and variable cost are used synonymously, right? So, and how it is defined? Marginal cost per unit is the change in the amount at any given volume of output by which the aggregate cost changes. ठीक है, if the volume is increased or decreased by 1 unit. Okay, if you increase a unit by 1 unit or decrease it by 1 unit, whatever cost changes, that is marginal cost. That is the technical definition of marginal cost. ठीक है, again in chapter of marginal cost आपको और भी detailing मिल जाएगा इसमें. You will get even more detailing. Okay, so you can just check there. There you will have all even differentiation between absorption and marginal costing, or quite a lot of detailing will be there compared to here. But this is supposed to be introduction chapter. Okay, this is marginal cost. ठीक है, so differential cost is change in cost due to change in activity level from one level to another. Okay, so actually differential cost and marginal cost are different. ठीक है, that marginal cost doesn't have fixed overhead at all, whereas differential cost बस ये देखता है. Differential cost is used for such decisions. Okay, that now today if I am producing 500 units,
Okay, and tomorrow I want to produce 800 units, so what cost is required here? Okay, and in differential cost you take into consideration your variable costs as well as fixed costs. ठीक है, डिफरेंशियल का जो डिसीजन में you take into account all kind of costs, but why, that is the only major difference. But कई scenarios में it is used, differential cost and marginal cost जो है ना, use it synonymously. Okay, but when you go particularly, this is the difference. ठीक है, so that is, और एक तरीके से बोलूं तो then in marginal costing you have, वो चैप्टर में you will see what is absorption costing वगैरह. So absorption costing and marginal costing are two different forms of two different systems. ठीक है, so differential cost does decision making using absorption cost, not marginal cost. ठीक है, but in कई चीजों में loosely they are used as one. Okay, right. So then next is opportunity cost. Opportunity cost is the value of alternatives foregone by adopting a particular strategy or employing resources in a certain particular manner. ठीक है, ये है value foregone. ठीक है, इसका क्या मतलब है? What is the meaning? We'll come to it. ठीक है, the return expected from an investment other than the present one. Okay, so these refer to costs which result from the use or application of material, labor, other facilities which has been foregone. ठीक है, and as the facilities were not used as planned. तो इसका जो opportunity cost का इसका मतलब ये होता है, ठीक है, so आपको, say for example you now have your manufacturing say bats, cricket bat you are manufacturing. ठीक है, so and you have a space, आपके पास एक regular space है. ठीक है, you are using to manufacture cricket bats in here. ठीक है, तो आपको आपके पास और एक ये है, you manufacture tennis bats. ठीक है, same place में you can do it with the same facilities. ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, while manufacturing bats, say you are getting a profit, monthly profit of 50,000. ठीक है, so if you stop manufacturing bat for manufacturing tennis bats, तो आपने क्या forego किए? 50,000 rupees you have foregone. Okay, ठीक है, so now when you manufacture tennis bats, तो इसका आप you are starting with an opportunity cost of 50,000. यानी ये आपका लॉस्ट एक अपॉर्चुनिटी है, 50,000 कमाने का अपॉर्चुनिटी छोड़ के आप यहाँ आए, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसमें योर रेवेन्यू मस्ट बी ओवर 50,000. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द बैंक आर प्रपोज्ड टू बी विथड्रॉन फॉर फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट को आप फाइनेंस कर रहे हो, ठीक है, ये नॉर्मल केसेस में हम लोग भी देखते हैं. इफ योर एफडी, ठीक है, एफडी इज गिविंग यू एन इंटरेस्ट ऑफ, मान लीजिए 1 लाख इंटरेस्ट यू आर गेटिंग. ठीक है, नाउ से someone wants you, your relative wants you to take this out and put this money in a business. ठीक है, so if you are putting the money, इसका suppose पैसा है, that is 50 lakhs, let us say, ऐसे just ले रहा हूँ, capital is 50 lakhs and you are getting interest of 1 lakh. Okay, as just taking it for an example. Now if you put this 50 lakhs in a business, तो आपको ये 1 लाख जो मिल रहा है वो हाथ से चले जाएगा अभी, करेक्ट. सो इस बिजनेस का
अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 1 लाख, मतलब ये बिजनेस को 1 लाख से ज्यादा अर्न करना है, ठीक है। दैट्स हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्टेड इज इट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बंद करेंगे इसको, फ्रॉम हियर आई विल कंटिन्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, वन आवर वी विल बी एबल टू कंप्लीट, ठीक है। सो आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू okay